record. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We today talk about a very important topic that's called the DOM in the JavaScript. You should remember one thing, the JavaScript is the soul of web development. No matter what you do, if you're not got a hold of the JavaScript, but these classes won't make you the expert of JavaScript. JavaScript is a big thing. It's everything, it has tons of stuff in it. Okay, so to master JavaScript means you are a web developer. So if you have no idea of JavaScript, so you can't dream about being a web developer. So JavaScript is the crux. It's the whole story, right? Because the logic you build, it's in the JavaScript. So no matter what APIs you use, what frameworks you use, they all go on a JavaScript. Somebody wanna get admitted? Khalid, you admit. Anyways, so now what is a DOM? It's a very simple thing. It's not a big thing. It's just an object-oriented concept. It's in OOP. We want to get the stuff into the OOP, object-oriented. What we want to do is we want to have a document, which is definitely your document, the HTML document, because we are building the HTML document or any document you have on a web. So we want to give it an interface. We want to give interface to web documents. This is the first thing. So the DOM, which is called as document object model. So it is a document object model. The name itself suggests what it is. It is, firstly, to give web document an interface in terms of OOP, object-oriented programming. So make these documents as an object, okay? For whom? For the programmer. For the programmer. So for programmer, we have this document like an object, right? What's an object? Which has classes and methods. Why we want to do that? So first thing, we have a document, which is an HTML document or any web document. I told you web document, any web document. I want to give some interface. So interface means, say for example, we have a phone and it has those buttons. So I want to save something. So there's a save button. You press the save button, it's getting saved. So what is the save? It's an interface to you, so that you can work with the hardwares, you can work with the stuff. You have a laptop and you have these buttons, and also, for example, I'm using this OneNote. I'm having here the draw and I'm having these things. What is this? This is interface to me as a user. I can use this interface to use the functionality, right? So this is what interface means. So what DOM gives you is an interface. It gives you what? An interface फॉर किसका इंटरफेस देगा? वेब डॉक्यूमेंट का. किसको देगा? प्रोग्रामर को. नाउ कैन यू गेस why the heck you want an interface for the web documents as a programmer? Because you wanna change it. आ गया वहां से? No, I'm in class. You getting my point? What I'm saying? That you have a document, web documents. Now you are given an interface as a programmer. Why? So that you can manipulate. So what do you want to manipulate? What are you going to manipulate? You can manipulate the whole structure. You want to change the structure. That means you want to change the HTML. You want to change the CSS. That is, you want to change the style of particular thing. Right? Okay? Somebody has come up. Or you want to change the content. So that means in totality, the DOM will give you a programmer an interface. किसका इंटरफेस देगा? जो आपके पास वेब डॉक्यूमेंट्स हैं. ओके, यू गॉट वेब डॉक्यूमेंट्स. उसका इंटरफेस देगा. किसको देगा इंटरफेस? प्रोग्रामर को. प्रोग्रामर को देगा. किस लिए देगा? ताकि यू कैन मैनिपुलेट. व्हाट विल यू मैनिपुलेट? You will manipulate the structure, you can manipulate the style, you can manipulate the content. So overall, you can change everything in the JavaScript. You want to change HTML, you want to change style, you want to change anything. But if you want to change, for example, I have got one header, h1 tag, and I want to change its content. यहाँ पे लिखा था Java. मैं चाहता हूँ नहीं Java ना आए, JavaScript आए. ठीक है? या यहाँ पे लिखा था, for example, submit. अब आपने सबमिट किया, तो इस सबमिट की जगह अब आना चाहिए सबमिटेड. ठीक है? तो यानी कि आपने कंटेंट चेंज करना है. आप चाहते हो कि यहाँ पे एक बटन है, इसका कलर चेंज हो रन टाइम पे डायनेमिकली यूजिंग द प्रोग्रामिंग. ठीक है? फर्ज कीजिए आपका यहाँ पे एक बटन है,
ये लाल हो रहा है अगर आपका पासवर्ड गलत है। अगर आपका पासवर्ड ठीक है तो ये ग्रीन हो रहा है, यहाँ पे टिक आ रही है, और यहाँ पे एक बॉक्स इमेज आ रही है जिसमें टिक है। ठीक है, तो यानी कि आपने एलिमेंट ही इसमें लगा दिया, नया एलिमेंट लगा दिया जो कि था नहीं पहले, जो आपके डॉक्यूमेंट में था ही नहीं। वो आपने रन टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन कि यूजर ने पासवर्ड ठीक दिया या नहीं दिया, एक यहाँ पे लोगो लगा दिया जिसमें टिक आ रही है, या किसी का कलर स्टाइल चेंज हो रहा है, या किसी को आपने क्या कर दिया काम, उसका टेक्स्ट कुछ लिखा था वो टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो कुल मिला के तीन चीजें कर सकते हो। या तो आप एचटीएमएल ही चेंज कर सकते हो, यू कैन डिलीट सम एलिमेंट्स और यू कैन पुट सम एलिमेंट्स इन इट जो कि आपको पहले नहीं थे। या तो आप उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो, किसी का कलर चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, डिपेंडिंग अपॉन सम एक्शन, कोई एक्शन आपने की उस रन टाइम पे, आपने उसका स्टाइल चेंज किया। या आप उसका कंटेंट ही चेंज करना चाहते हो, फॉर उसका टेक्स्ट कुछ लिखा था आपने, जैसे फॉर्म जिसमें लिखा था सबमिट द फॉर्म, अब आ गया सबमिटेड। समझ में आ गई? लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है व्हेन यू हैव एन हैंडल, when I grab you, I want to change. For example, this is the boy Kaleem. He's having a jacket which is kind of a red, so I want to change it. मैं तब कर सकता हूँ ना जब मुझे एक्सेस होगी इस जैकेट के ऊपर, मुझे हैंडल होगा इस जैकेट के ऊपर, तब जाके मैं इस जैकेट को कलर कर सकूंगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट डॉम गिव यू। इट क्रिएट्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, it deems everything as an object and you have it. For example, if I create an empty project here, I will create an empty project here, index here. Okay. 1 second. I create an empty project here. So new file, call it dom.html, html, dom.html. Okay. And I'm putting something in it, which is written here. Title is document and all. Maybe I want to change the title later on. Maybe I'll do. First of all, I have got an empty project, and if I give it a go, I will say go live. Now, what are you given? You are given a white window. You are given a white window. So what is this window? So basically, what you are given is, firstly, you are given a window, this thing. Okay. On this window, whenever you have an empty project, you still have a window. You still have a window, which is a parent of all. Then inside the window, you have a canvas where you can draw things, where you can put things, you can put up elements and all. And that thing is called as a document. And now the canvas you have, as an HTML canvas you have, it is the document. Now you can put up your headers there, you can put up the buttons there, you can put up the input boxes, you can put up images, you can put up videos, you can put up all the stuff. They all are like this as a hierarchy. Like we have a window has a document, and a document has, like, for example, you got an HTML, you got an head, you got the body. Now, okay, now body has these things, got div, and the div has inside the h1, and so on and so forth. It's like in hierarchy, a tree structure. And this, everything here, at every moment, every node here is an object which you can access as a programmer. So DOM is giving you an interface, okay, so that you can interact with every one of this tree structure. Right? So let us try to see things. मैंने एक पेज खोला था यहाँ पे, कहाँ गया हूँ? Yes. So what is a DOM here? An HTML DOM is a tree of objects. You got a document, you got the root element, that's HTML. Basically the document के ऊपर यहाँ windows हैं, ठीक है? Document के ऊपर क्या है? Window. You have to remember that thing. Window के नीचे document है. First of all, you will be given a window, because जब आप alert करते हो ना, alert, it's actually window.alert. लेकिन हम विंडो नहीं लिखते हैं, वो ऑप्शनल है, वो खुद ही लिखा जाता है, बिकॉज ऑन द टॉप एक्चुअली देयर इज अ विंडो, देन देयर इज अ डॉक्यूमेंट, एंड देन देयर आर रूट एलिमेंट एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर हेड है, हेड के अंदर बॉडी और बॉडी है। इनफैक्ट एचटीएमएल के अंदर हेड एंड बॉडी है ना, मैंने वो एचटीएमएल साइड में लिखा था यहाँ पे, सॉरी।
यहाँ HTML के अंदर ये हेड एंड बॉडी है ना, फिर बॉडी के अंदर ये चीज़ें हैं, हेड के अंदर टैग्स हैं, मेटा टैग्स हैं और ऑल दैट, या टाइटल है या लिंक टैग है या क्या क्या है। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, और ये सारे के सारे जो है ना ऑब्जेक्ट होंगे। लेट्स ट्राई टू, ऐसे समझ नहीं आएगा, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब समझ आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर ऑलरेडी script.js। मैं इसको ख़त्म ही करूँगा फिलहाल, ठीक है, ये परसों हम कर चुके हैं ना कुछ इसमें। सो index.html ऑलरेडी मेरे पास है। सो डॉम, अब मैं इंडेक्स पे ही काम करूंगा, क्योंकि अब मैंने डॉम पे किया काम, तो डॉम पे ही करूंगा काम, ठीक है ना। सो ये मेरा, पहले मैं लिंक करूंगा इसको। सो वी शुड लिंक इट ऑलवेज आफ्टर वी हैव फिनिश्ड राइटिंग द HTML, राइट। पहले नहीं करना, एंड पे करना है। सो हाउ वी से स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स मेरा ये है script.js, script.js जो मेरी फाइल है, ये मेरा इसमें ये है, ठीक है ना। तो ये लिंक हो गया इसके साथ, डॉम के साथ। इसको क्या परेशानी होगी, आई डोंट नो व्हाट। ओके, अब यहाँ पे script.js जो है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, मे बी इट्स एन एम्प्टी, दैट्स व्हाई शोइंग इट स्क्विगली लाइन। अब क्या मसला है कि मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसे राइट console.dir, और मैं इसको कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट। भाई डॉक्यूमेंट आपने कुछ लिखा है नहीं लिखा, डॉक्यूमेंट तो आपको दिया गया ना। मैंने कहा ना विंडोज है, विंडोज में जो भी आपका वाइट स्पेस है ये डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसमें सारी चीजें हैं, वो आपको एज ए प्रोग्रामर दी गई हैं। एंड इफ आई वांट टू डू, इफ आई वांट टू सी दिस हियर, and I go here and inspect. I go here and I say inspect. Okay. Now, if you look here at the top, can you see this? मेरा ये बीच में आ जाता है इसको। Now you see everything is. I go to the console firstly. This is the document firstly. Okay, where we got the everything in it, right? And if I go to the console, there is a document you could see here. If I go to the console here and there is this document जिसका मैंने कहा कि आप कंसोल करो, इसको console.dir करो, डॉक्यूमेंट में है क्या चीजें। Now if I open this document and you see there are tons of things already given to you. These are all classes of the document. We can use that. On drag, on selection, पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें जो ही आप एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हो, हालांकि आपने उसमें कुछ लिखा नहीं अभी, तो आपके पास ये सारी चीजें प्रोग्रामर को है। जैसे टाइटल है, इसका क्या है, इसका टाइटल है जैसे आप देखेंगे, एंड एवरीथिंग, है ना। ये सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल चुकी है। एज ए प्रोग्रामर you can manipulate anything from this. Say for example, now I go here and I say here, for example, console.log. You can do with me or you can write on directly on your laptop, ठीक है। मैं कह रहा हूँ console.log करो, document.all. हालांकि ये डेप्रिकेटेड है, इसका जो ये लाइन होती है ना, इट मींस डेप्रिकेटेड, यू डोंट यूज दिस ऑल, बट इट विल वर्क। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे, अब देखो ये वाला छोड़ो, आप ये एक्सटेंशन कह रहे हैं। अब ये वाला देखो आप, ठीक है ना, लेट मी मिनिमाइज दिस थिंग। ओके, ये वाला देखो। अब आप ये जो मैंने कहा कि ये जो मैंने चीजें दी आपको कि HTML, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट और ऑल जितनी भी चीजें हैं वो कंसोल करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे लाओ। इसने एज एन एरे वो लिखी है कि पहला 0 पे HTML है, 1 पे हेड है, 2 पे मेटा है, 3 पे, 4 पे, देखो 4 पे टाइटल है ना। और टाइटल में देखो कितनी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो टाइटल के ऊपर, ये सारी एज एन ऑब्जेक्ट, और इसके मेथड्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइटल चेंज करना है, आई वॉन्ट टू चेंज द टाइटल, ठीक है ना। या पहले मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा यहाँ पे कि मुझे आप ये मत दे दो, ये सारा नहीं मेरे को चाहिए, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस ऑल्सो, राइट। नहीं यार, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, आई एम सेइंग console.log, कंसोल डॉट नहीं, कंसोल पे मुझे लॉग करके दे दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट ऑल ऑफ, किस पे था वो, 4 पे था शायद। अगर मैं 4 कहूंगा, मुझे चौथा दे दो खाली। देखो चौथे पे टाइटल था ना, तो टाइटल आ गया, यानी कि आई कुड एक्सेस इट, मुझे, मेरे पास इंटरफेस है, मैं टाइटल को एक्सेस कर पा रहा हूं। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल जो मैंने कहा, उसमें जो चौथा है उस पे करो, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि
जो चौथा है कभी ये पांचवा भी हो सकता है, कभी छठा हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स आपके पास है ना। तो इसलिए हम ऐसे भी नहीं बोल सकते। हमारा दूसरा तरीका है कि हम सीधे बोल सकते हैं कि कमांड फॉरवर्ड स्लैश, हम सीधे बोल सकते हैं इसको कि भाई साहब कंसोल डॉट लॉग करो आप, कंसोल डॉट लॉग किसको, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। या अगर मुझे वो चेंज करना है, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, मैं सीधे टाइटल से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, आई कैन एक्सेस इट। तो यही तो इंटरफेस है ना, कि मैं इसको एज ए प्रोग्रामर पकड़ पा रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ इसमें, मैं इसमें लिखूंगा लर्निंग डॉम, लर्निंग डॉम, मैं टाइटल को ही चेंज कर रहा हूँ। नाउ इफ यू सी, और मैं वो कंसोल को लॉग भी कर रहा हूँ, मैं कंसोल में वो लॉग भी कर रहा हूँ, और मैंने टाइटल को चेंज भी किया, मैं डॉक्यूमेंट और टाइटल उसमें मैंने असाइन किया लर्निंग डॉम। ना इफ आई गो हियर एंड इफ आई ओपन अप दिस थिंग लिटिल बिट स्मॉलर, सेकेंड, नीचे में रख लेता हूँ उसको, हाँ। अब यहाँ पे देखो आप, टाइटल क्या आ गया यहाँ पे, लर्निंग डॉम। चलो मैं इसको बंद करता हूँ फिलहाल, ये बाद में आप देखेंगे, ये लर्निंग डॉम टाइटल आ गया। और मैंने लर्न टाइटल जो वो कंसोल डॉट लॉग भी किया, यानी कि आई कुड एक्सेस द टाइटल of my web page and I could change it in my JavaScript. As you could see, learning DOM यहाँ पे आ चुका है। सो मैंने सक्सेसफुली अपना टाइटल चेंज भी किया और उसको कंसोल डॉट लॉग भी किया, ठीक हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम क्या कैसे काम करते हैं कि हम, क्योंकि हम मुझे मे बी बाद में मुझे और काम करना होगा टाइटल पे, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करोगे काम, कि आप ऐसे लर्निंग कंसोल डॉट टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल नहीं, बल्कि एक वेरिएबल बनाओगे, उसमें इसको डालोगे। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ पे कुछ पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई से डॉट बॉक्स वन, ओके, ये मेरा बॉक्स वन है। यहाँ पे एक मैं कहूँगा h1 डॉट हेड। अभी इसको h1 बनाएगा विद द क्लास हेड, ठीक है ना। आई विल से लर्निंग डॉम, ये मेरा हेडर एक है, ओके। एक एक और बॉक्स बनाएंगे हम, डॉट बॉक्स टू, ओके। एंड इस बॉक्स में मैं एक यूएल बनाऊंगा, यूएल टैग बनाऊंगा, हाँ? ऐसे यूएल, उसका हम आईडी रखेंगे, सो हैश से फॉर एग्जांपल आई से बुक्स, ओके। एक यूएल टैग बन गया विद एन आईडी बुक्स। और यूएल में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में एलाइज होते हैं, वी नो दैट एलाई। और इन सब का क्लास दूंगा मैं लिस्ट, और कुल मिला के चार मेरे पास होंगे, यानी कि एलाई, उसका डॉट लिस्ट का मतलब है उसको क्लास बनाओ, लिस्ट बनाओ विद क्लास नेम लिस्ट, और चार बनाओ ऐसे ही। यानी कि अब क्या बन गया, एलाई क्लास बन गया लिस्ट, क्लास सबका लिस्ट आ गया, और चार एलाइज बन गए। से फॉर एग्जाम्पल पहला मेरे पास जावा बुक है, दूसरा है सीपीपी बुक, फिर है मेरे पास एएलपी की बुक, और मेरे पास और भी कोई बुक है जैसे सी प्रोग्रामिंग और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट, ठीक है ना। ओके, तो ये मेरे आ गया। उसके बाद मैं इस डिव के बाहर जाऊंगा, और मैं एक और डिव बनाऊंगा, एंड आई कॉल इट बॉक्स थ्री, बॉक्स थ्री, ओके। अब इस बॉक्स थ्री में मैं इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, जैसे मैं कहूँगा यूजर नेम, देन आई से इनपुट, देन आई से इनपुट कोलन टेक्स्ट, इसका कुछ नेम देंगे यहाँ पे, नेम say for example user name, and I copy paste this down, and I may say this is the password now, I may say this is the password, okay. And input type is password, okay, p small, then name is password, okay. Maybe I go down here, I create one button, and I say simply button, or I could say input button or button, सर इसका स्क्रिप्ट ID, टैग बॉडी टैग में जाएगा ना? जी, सर स्क्रिप्ट टैग वो हाँ, बॉडी में, वो अच्छा, बॉडी में जाएगा ना? आप हेड अच्छा, में भी नहीं रखा है, बॉडी इसीलिए में भी नहीं रखा इसीलिए एरर आ रहा था, क्योंकि हमने बॉडी के बाहर लिखा है। कमांड एक्स, यूर राइट, इसको यहाँ पे ये सारा है ना, ये सारा ही इसमें लिखना है। यानी कि जो ये जो मैं कर रहा हूँ ना डिव, ये बॉडी में लिखना है। कमांड वी, हमने बॉडी ऊपर रखी थी, इसीलिए एरर दिखा रहा था। बॉडी इसको क्या हो क्या गया, हाँ, कमांड एक्स, तो वो तो आ ही गया, छोड़ो, ओके। ओके, आईडी यहाँ पे देंगे, बटन आईडी, इसलिए स्क्विगली दिखा रहा था, बॉडी के अंदर हमने नहीं लिखा था।
अच्छा, आईडी हम देंगे इसका कुछ, ओके, बटन से सबमिट, फॉर एग्जांपल सबमिट, and I say here submit. Right now I see here I got my little program here. This is the h1, which has some h1 has an class of head. Okay, maybe I will call it as an id of head, for example. Then I got a class names here. I can have some people with the class name, some people with the id. Okay, then I got the button, I got a lot of stuff. Now what I will do is I will want to ask you guys that I want to here click on the click of this button. I should do something, some function. So how should I do? क्या मैं कैसे करूंगा वो? हाँ, कर चुके ना मैं, शाबाश, जल्दी बताओ. I will write here something. On the click of button, a function should run of a JavaScript. So on click the function call करेंगे. Very good. So we say on click, and I say on click आप क्या करें? Equals to, then you call the function, right? On click of function को call करें. Okay? Am I writing perfectly? गड़बड़ तो नहीं किया मैंने कुछ? Squiggly किया है यहाँ? यानी कि यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन रन होगी, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. ये फंक्शन, हाउ आई राइट फंक्शन? यूजिंग द कीवर्ड फंक्शन, एंड देन आई हैव द fun name function, and I want to do here something. Now in the function I am saying e equals to document dot get element by id. मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आप उस बंदे को पकड़ो जिसका आईडी हेड है. फॉर एग्जाम्पल आई गॉट एन हेड. हेड किसका आईडी है? देन आई से कंसोल डॉट लॉग दिस ई. मैं क्या कह रहा हूं कि भाई साहब जिसका आईडी हेड है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स में हेड मैंने किसको रखा, इसको डिलीट ही कर लेते हैं यार, बीच में आ रही है. डिलीट दिस, मूव टू ट्रैश. ये जो डॉम वाला है, अब मैंने किसको आईडी रखा है हेड? h1 को. ठीक है, आइदर आई कैन डायरेक्टली कॉल द h1 एंड ऐसे डॉक मैं पकड़ सकता हूँ h1 को डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट डॉट जैसे टाइटल किया है ऐसे h1 कर सकते हैं. लेकिन मैं पकड़ूंगा यूजिंग द आईडी, आईडी जिसका हेड है. तो मैं कह रहा हूं कि आप उस बंदे को पकड़ो गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसका हेड है. डॉक्यूमेंट के अंदर जो बंदा है जिसका आईडी हेड है, तो ई में कौन चला जाएगा? आई एम आस्किंग क्वेश्चन. हाँ जी, आर यू गाइस विद मी और नॉट? अच्छा, मीटिंग चला दी किनकी है? दुका अच्छू, वेयर आर यू गाइस? आई एम आस्किंग क्वेश्चन. ई में कौन चला जाएगा? Head. एग्जैक्टली हेड ही चला जाएगा, और कौन चला जाएगा? क्योंकि हेड का ही आईडी है ना. जो हेड मेरे पास है उसका आईडी है हेड. सॉरी, h1 चला जाएगा, नॉट हेड. आईडी हेड है. किसका आईडी हेड है? फर्ज कीजिए मुसव्विर यहाँ पे है. H1 का. मुसव्विर का आईडी मैंने H1 का रखा, आईडी। मैंने मुसव्विर का आईडी रखा है 3. मुसव्विर का आईडी मैंने क्या रखा है? 3. डोंट ट्राई टू राइट थिंग्स एनीबडी. मुसव्विर का आईडी मैंने 3 रखा है. सो आई एम सेइंग गेट एलिमेंट बाय आईडी 3. तो ये कौन होगा सिलेक्ट? मुसव्विर. सीधी सी बात है, जिसका आईडी होगा वो सिलेक्ट, यानी कि h1 सिलेक्ट होगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सबमिट, सो यू विल सी द h1 इज गेटिंग सिलेक्टेड हियर. और मैंने वो कंसोल भी किया ना, बिकॉज आई सेड कंसोल डॉट लॉग ई. फिर उस ई को आप ना एक काम करो, उसको भेजो. उस ई को आप क्या करो, उसको आप कंसोल लॉग भी करो. अब कंसोल डॉट लॉग मैंने किया. ये कंसोल डॉट लॉग हम करते नहीं है बाद में, ये सिर्फ हम दिखाने के लिए, सीखने के लिए कर रहे हैं कि ये गोवा सिलेक्ट करना. कि मैंने ई को पहले पकड़ा, ई में मैंने क्या डाला, एक वेरिएबल मैंने पकड़ा. उसमें मैंने कहा कि आप गेट एलिमेंट, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसमें ये सारी चीजें हैं. इट विल बी लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर. और उसमें से आप उसको पकड़ो जिसका आईडी है हेड. तो मैंने आईडी हेड इसका लिखा है लर्निंग डोम का, है ना. तो वही h1
आईडी जिसका लर्निंग डॉम है ये आ गया कंसोल में। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, व्हाट शैल आई डू? कैन आई चेंज दिस आईडी? जो सॉरी, कैन आई चेंज इट्स कंटेंट? I have to change its text content. What I have to change its? Remember, I want to change its text. मुझे learning DOM नहीं लिखना, मुझे लिखना है कि I am learning DOM, learning just learning DOM। इसमें हमें चेंज करना है, हमें लिखना है कि yet, या कुछ भी लिखना है जैसे just learning DOM, या learning JavaScript लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको learning JavaScript। कैसे कहूंगा मैं? तो मैं क्या चेंज करना चाहता हूं इस एलिमेंट का? ये सिलेक्ट तो हो गया, ये बंदा सिलेक्ट हो गया। ये बंदा सिलेक्ट किस में हो गया? जब मैं क्लिक करूंगा ये बंदा किस में सिलेक्ट है? ई में, है ना? आई हैव गॉट ए ई नाउ। अब मुझे रोज रोज ये नहीं कहना कि जो H1 है, H1 जो बंदा है या टेलमेंट आईडी, मेरे पास ई आ गया, मेरे पास रोल नंबर 3 आ गया। मैं अब रोल नंबर 3 को कलर करना चाहता हूँ, रोल नंबर 3 को ये करना चाहता हूँ, रोल नंबर 3 को वो करना चाहता हूँ, मुझे रोल नंबर 3 बोलना है, यानी कि ई मेरे पास आ गया। अब मैं ई को कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन से ई डॉट, ओके। मैं क्या करना चाहता हूं? इसका चेंज टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट एंड डॉम, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू डू दैट। ठीक है, जब मैं यहां पे जाऊंगा, व्हेन आई प्रेस द सबमिट, नाउ यू सी लर्निंग जावास्क्रिप्ट एंड डॉम, आई चेंज इट। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट ये आ गया। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यानी कि हमारे पास टाइम जा रहा है, इसमें मीटिंग में अभी कमी टाइम है। We have few time left. We will continue this class by tomorrow, where we do more things. So what I am saying is that being an DOM, what has happened with the DOM? You got the document because you are accessing the document. Because the moment you created an HTML file, you are given a window, and on the window you are giving a canvas in terms of a document. And document is nothing but an object hierarchy where you can access it. Okay, as a programmer I can access it, okay, I can grab it and I can manipulate it, like I manipulated its text content, right? I grab anything on my document. Right now my document was having these things. If I have nothing in it, still it will have a document in it. Okay, the document has its own properties, document has its own stuff, so you can create these elements dynamically। अगर आपके पास ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर है, ये जो एलिमेंट्स आपके पास है, अगर नहीं भी होते आप खुद कर सकते हो क्रिएट, क्योंकि डॉक्यूमेंट में आपका हैंडल है जहां पे आप HTML भी क्रिएट कर सकते हो, जहां आप अगर HTML है ऑलरेडी, ये उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो और उनका कंटेंट भी चेंज कर सकते हो, जैसे अभी मैंने कंटेंट किया। तो पहला काम आपका होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किसको चेंज करना चाहते हो। तो पहला मैकेनिज्म जो होगा वो सिलेक्शन का होगा। पहला मैकेनिज्म क्या होगा? सिलेक्शन का। कि आपने इस सारे में किसको सिलेक्ट करना है। तो उसके बहुत सारे तरीके। एक तरीका है कि आप आईडी से पकड़ोगे, जिसका आईडी ये है। दूसरा तरीका है क्लास से। फर्ज कीजिए मुझे इन सब के ऊपर कुछ काम करना है। ये जो क्लास है ना, ये LI क्लास लिस्ट, मुझे क्लास लिस्ट जिसका भी क्लास लिस्ट है उन सब को मुझे पकड़ना है। ठीक है, सो दैट मीन्स आई कैन हैव अ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, लेकिन I can't say simply get element by class name और ID. I have to say document dot, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट के है, क्योंकि असली ऑब्जेक्ट कौन है? डॉक्यूमेंट। ये उसके मेथड्स हैं। नाउ यू सी दिस इज अ मेथड, गेट एलिमेंट बाय ID, इट इज अ मेथड। एज यू कुड सी हियर देयर इज द parenthesis, इट्स अ मेथड। द डॉक्यूमेंट इज द ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मेथड्स हैं। वो आपको हेल्प कर रहा है टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है ना? आपको, क्योंकि अगर आपको मैनिपुलेट करना है किसी चीज को, फर्ज कीजिए मेरे पास यहाँ पे ये लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि बुक्स की लिस्ट जो मेरे पास है गलत है, इसमें जावास्क्रिप्ट ही नहीं है, मेरे पास जावास्क्रिप्ट है। आई शुड चेंज इट टू जावास्क्रिप्ट, आई शुड इंट्रोड्यूस जावास्क्रिप्ट इन इट। और आई डोंट वांट ALP, आई वांट हियर पुट जावास्क्रिप्ट इन इट। ठीक है ना? सो पहला काम ये होगा कि आपने इसको सिलेक्ट करना है, ALP को सिलेक्ट करना है। सो यू शुड हैव सम मैकेनिज्म टू सिलेक्ट इट, देन यू कैन चेंज इट्स टेक्स्ट कंटेंट और यू कैन स्टाइल इट। लेकिन पहला काम, इससे पहले कि आप इसका कंटेंट चेंज करो, इसका स्टाइल चेंज करो, यू नीड टू
selected. So how we selected? One of the methods I showed you today is document.getElementById. So what is document.getElementById doing? It is selecting a particular element on your document. ठीक हो गया? Chat 3 आ रहे हैं हमारे पास कुछ. What is this? ये अटेंडेंस हो रही है क्या? अच्छा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट अटेंडेंस में है ना? समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? लुक एट मी नाउ. सो मैंने कहा आपको जो डॉम है, व्हाट इज इट? इट्स एन इंटरफेस टू ए प्रोग्रामर. ओके, फॉर व्हाट? जस्ट स्पीक अप नाउ क्विकली, वी हैव 2-3 minutes लेफ्ट. मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड कंटेंट. वेरी गुड, है ना? एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू, if you want to change the content and you want to change it, style it up and something, मैं स्टाइल करना चाहता हूँ आप में से किसी को, तो पहला काम क्या होगा? उसको सिलेक्ट करो. So we use some variables, say for example e equals to, you can put up, it's not necessarily but e is just a variable, you can put up anything, right? I'm saying e equals to, then anything which is on the on this HTML is actually on the canvas. What is the canvas? ये असल में है किस पे? डॉक्यूमेंट पे है ना? अरे तो सिंपल है. आप लोग क्या हो गया? फरहान आपको समझ आ रहा है बेटा? तो जो भी चीज आप डाल रहे हो वो तो डॉक्यूमेंट पे डाल रहे हो ना. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है राइटिंग पैड है, ये मानो मेरा कैनवस है, जो भी ये यही मेरा वेब पेज है. ये पहले ये डॉक्यूमेंट है ये चीज, ठीक है? अब मैं इस पे एक चीज बना रहा हूं, मैं इस पे डाल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, फॉर्म एलिमेंट्स, कुछ भी इमेज डाल रहा हूं. किस पे डाल रहा हूं मैं इस पे इसी कैनवस पे. कैनवस पे. सो व्हाट इज द कैनवस? एक्चुअली इट्स अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, मैंने इसको दिखाया ना आपको, पहले ही डॉक्यूमेंट में पहले ही आपके पास हजारों चीजें हैं. वो चीजें जो हैं वो असल में खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है ना? तो आपको जो भी करना है डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, क्योंकि आपकी चीजें डॉक्यूमेंट के ऊपर है. तो अगर आपको नया एचटीएमएल लगाना है इस पे, वो डॉक्यूमेंट पे लगाना है. अगर एचटीएमएल में कोई स्ट्रक्चर है उसको पकड़ना है आपको, उसको स्टाइल करना है, उसका कंटेंट चेंज करना है, पहले उस एलिमेंट को पकड़ना है, बट इट बिलोंग्स टू डॉक्यूमेंट. सो व्हेन यू से document dot get element by id, document dot get element by class name और by tag name और anything. So पहला काम सिलेक्शन का होता है. उसके बाद जब सिलेक्ट हो गया, वो किसी वेरिएबल में आ गया, ई में आ गया. नाउ यूजिंग दैट ई आई कैन चेंज इट, आई कैन मैनिपुलेट इट. वेरी सिंपल स्टोरी. यू हैव गिवन अ विंडो, देन ऑन द विंडो यू हैव अ डॉक्यूमेंट, द कैनवस. उस कैनवस पे आपने अपनी चीजें डालते रहते हो, आप डालते रहते हो, जो भी आप एचटीएमएल में लिख रहे हो वो आप डालते रहते हो. नाउ यू वांट टू डायनेमिकली, एक तो क्या आपने स्टैटिकली उसमें स्टाइल वगैरह कर दिया यूजिंग योर स्टाइल सीएसएस, लेकिन अब आप डायनेमिकली चेंज करना चाहते हो ऑन सम फंक्शनैलिटी बेसिस, वो आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो. सो उसके लिए पहले क्या आपको करना है, वो सिलेक्ट वो एलिमेंट. हमने सिलेक्ट किया, उसको चेंज भी किया, ठीक है? वी कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो. होप यू गॉट इट. इफ यू डिडंट गॉट इट, watch video on a YouTube and watch it couple more times and do the practice. Okay then, Allah Hafiz.